Senior Minister Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. Another important point which I want to make it very clear is, during the intervention on the budget discussion, the leader of the opposition did not make any proper, useful, substantive contribution to the budget discussion. He was only making wild allegation. So I told him, while he is making allegation, please present in the House when the finance minister replies on the discussion on budget at 5 p.m. today. He broke the rule there itself. After his speech, he immediately went out of the House. The rule in the House is, once a member makes his speech, he cannot leave the House immediately after his speech is over. Shri Rahul Gandhi deliberately does this repeatedly. After his speech, which normally is full of lies and allegation, he runs away and he never sits to listen to the reply of the minister. When you are making allegation, you should listen to the reply. So it is very unfortunate that we don't have a very serious nature or a person with a serious character befitting the position of the leader of opposition. So our party has taken a stand that we will counter Rahul's lies outside, but inside the House, notice will be issued. We will serve the first notice to the Speaker. We will submit it, and then let us see. He has promised that he will authenticate, but I know he cannot authenticate because he lied. He lied on the House. Senior Minister Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. Another important point which I want to make it very clear is, during the intervention on the budget discussion, the leader of the opposition did not make any proper, useful, substantive contribution to the budget discussion. He was only making wild allegation. So I told him, while he is making allegation, please present in the House when the finance minister replies on the discussion on budget at 5 p.m. today. He broke the rule there itself. After his speech, he immediately went out of the House. The rule in the House is, once a member makes his speech, he cannot leave the House immediately after his speech is over. Shri Rahul Gandhi deliberately does this repeatedly. After his speech, which normally is full of lies and allegation, he runs away and he never sits to listen to the reply of the minister. When you are making allegation, you should listen to the reply. So it is very unfortunate that we don't have a very serious nature or a person with a serious character befitting the position of the leader of opposition. So our party has taken a stand that we will counter Rahul's lies outside, but inside the House, notice will be issued. We will serve the first notice to the Speaker. We will submit it, and then let us see. He has promised that he will authenticate, but I know he cannot authenticate because he lied. He lied on the House. We are going to file a notice, privilege notice, against Shri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement.
there is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. देखिए, सबने सुना है राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे, और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो सारा उसका भाषण, वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है वो भी हट जाना चाहिए, और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत खराब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए, और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए, पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिर में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमजोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वीं स्थान,
तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या? चिदम्बरम का भाषण सुना है आपने? पी चिदम्बरम ने 2014 में सरकार छोड़ने से पहले सदन में उसका भाषण और पीआईबी में ऑफिशियल न्यूज जो रिलीज किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि 2043 के बाद भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मोदी जी ने फास्ट फॉरवर्ड करके अभी चौथा तो बन गया, अगले 2-3 साल में कितना जल्दी से हम आगे बढ़ रहा है, तीसरी स्थान प्राप्त करने वाला है। तो आप सोचिए, तो कोई पुराना बात तो है नहीं। आज से 11 साल पहले का भाषण है चिदम्बरम का। मैंने कल सोशल मीडिया में भी डाला है, आप लोग भी देख लीजिए। पी चिदम्बरम ने क्या कहा? 40 साल लगेगा और 243 से पहले हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही नहीं सकते हैं। और अभी देश का हालत बदल गया। और राहुल गांधी जी को थोड़ा सोचना चाहिए, ये सब बात करने से पहले सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई कांग्रेस पार्टी में ज्ञान देने वाला नहीं है, उसको डरते हैं। और अगर ज्ञान देने का कोशिश करेंगे तो भी मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी जैसे लोग ज्ञान देंगे तो ज्ञान ही गलत होगा, क्योंकि चिदम्बरम जी खुद ही कहा कि 2043 के बाद ही भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ये तो हम नहीं कह रहे, तो उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो आज वो लोकसभा में जो कह रहे थे एआई का बारे में, डेटा का बारे में, सारा भाषण डेटा पे अटक गया, डेटा से आगे बढ़ ही नहीं पाया। अरे हम डेटा एआई का सबसे बड़ा सम्मेलन, अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का इनिशिएटिव में सबसे बड़ा एआई का सम्मेलन होने वाला है। हम तो बहुत आगे बढ़ गया, वो डेटा पे अटक गया। आप सोचिए, इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होते हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। तो आज भी सोचा कि कुछ अच्छा भाषण देंगे, सुधरा ही नहीं। आज तो पूरा हम लोग को बहुत नाखुश कर दिया उन्होंने। हम लोग ध्यान से हमारा 45 मिनट बर्बाद कर दिया, क्योंकि अगर कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो हम लोग सुनते हैं ना। हम लोग तो सरकार में सुनने के लिए तो बैठे हैं। जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनेमनस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात बहुत भली बात इससे समझनी चाहिए, आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप यह समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। जो कल भी पार्टी ने यह विषय कहा था कि जिस ढंग का आचरण पिछले दिनों में देखने को आया कि महिलाओं की शील्ड बनाकर आगे जाना, बैनर लगाते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है। यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा, और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में